students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is e-commerce. In this chapter, we will learn e-commerce, types of e-commerce, how e-commerce sites work, scope in e-business, shopping on the web, some more shopping sites, conclusions. तो e-commerce आपने कभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, वो किस तरीके से फंक्शन करती है आज हम वो जानने वाले हैं. E-commerce. The term electronic commerce have evolved from electronic shopping to imply all aspects of business and market processes enabled by the internet and the World Wide Web technologies. Electronic commerce means doing business online or selling and buying product and services through web storefronts, whereas the computer is a primary tool to perform basic business operations. The internet is the primary communication medium made for electronic commerce. To provide foundation to this commerce, the electronic data interchange EDI is a strategical means. In e-commerce, the business transaction between customers and suppliers and all operations of a firm are facilitated. The functional areas covered by it are finance, information services, human resources, manufacturing and marketing. Commerce refers to the exchange of goods and services, usually for money. There are three parties to any such exchange: buyers, sellers, producers. तो e-commerce का simply full form होता है electronic commerce, and this word has not just boiled down to something जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बल्कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन बिजनेस भी होने लग गया है वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजीज के थ्रू. यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन सेट होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सबको दिया जाता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए और बेचने के लिए. इसमें आपके बेसिकली अलग अलग फंक्शनल एरियाज होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग. तो किसी भी ई कॉमर्स में आपका जहां पर मनी एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, तो उसके आपके तीन सच एक्सचेंज होते हैं. आपका उसमें सेलर होता है, बायर होता है और प्रोड्यूसर होता है. सबसे पहले आता है बायर्स. बायर्स आर पीपल हु वांट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज. Sellers are the people who offer goods and services to buyers. Sellers are generally recognized in two different forms: retailers who sell directly to consumers and wholesalers or distributors who sell to retailers and other businesses. Producers. These are the people who create the products and services that sellers offer to buyers. A producer is always by necessity a seller as well, but the producer may sell the products to wholesalers, retailers or directly to the consumer. We can also say the commerce refers to the buying and selling of a product. E-commerce is simply an extension of this concept. E-commerce or electronic commerce means buying and selling of any product online. It is a way of enabling business over the net. Companies set up websites providing details of their products and services, and users can purchase whatever they want through online payment methods. Online purchasing became popular in 2012. The sites providing e-commerce are special sites as they have to implement some extra security features. तो आपका सबसे पहले बायर आता है. बायर का मतलब जो भी लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं. अब कोई खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला भी होगा, तो वो आपका होता है सेलर. सेलर जो होता है वो आपके दो तरीकों से चीजें बेच सकता है. एक रिटेलर होता है जो डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है, और एक आपका होलसेलर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो पहले रिटेलर को बेचता है और देन रिटेलर कस्टमर्स को बेचता है. देन कम्स योर प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर जो होता है ये ऑलवेज बाय नेसेसिटी एक सेलर होता है. ये डायरेक्टली भी आपके कस्टमर को भेज सकता है. प्रोड्यूसर बेसिकली वो होता है जो आपके प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो ये आपका सेलर भी होता है. या तो ये रिटेलर की तरह आपके डायरेक्टली कस्टमर को चीजें बेचेगा, या फिर ये पहले होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, रिटेलर को बेचेगा और उसके बाद आपका रिटेलर कस्टमर को बेचता है. जो ई कॉमर्स होता है या कॉमर्स होता है, सिंपली बाइंग एंड सेलिंग होती है चीजों की. कोई खरीदता है, कोई बेचता है. ई कॉमर्स इसी चीज का एक्सटेंशन है. पहले आप दुकानों पे जाके चीजें खरीदते और बेचते थे, अब आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया है, जिसके थ्रू आप चीजें खरीद और बेच सकते हैं. तो आपके जो ई कॉमर्स होता है ये आपका सिंपली आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं वो आपका ई कॉमर्स होता है. आपका ये नेट इंटरनेट सर्विस मांगता है, और सबसे ज्यादा आपका ये जो फेमस हुआ था, काफी टाइम से ये चालू तो था लेकिन ये स्टार्ट आपका पॉपुलराइज होना शुरू हुआ 2012 में. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैव बीन डिफाइंड. दे आर, सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ट्रांजैक्शनल,
Euro Office, Relationship Building, BP, Media Owned, EMAP Business Publications, B2B Marketplaces, EC21. Consumers, consumers to business, C2B, Priceline, consumer feedback, communities or campaigns. Business to consumer, B2C, transactional, Amazon, relationship building, BP, brand building, Unilever, media owner, News Corp, comparison intermediary, Kelco, Price Runner. Consumer to consumer, C2C, eBay, peer-to-peer, Skype, blogs and communities, product recommendations, social networks, MySpace, Bebo. तो आपके बिजनेस ई कॉमर्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, B2B, C2B, B2C और C2C. सबसे पहले आपका आता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसके आपके एग्जांपल जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, यूरो ऑफिस, सीधे आपका बिजनेस से बिजनेस का पूरा आपका कनेक्शन रहता है, बीच में कोई कंज्यूमर नहीं आता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन रहता है. रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, बीपी, मीडिया ओन रहता है, और उसके बाद आपका B2B मार्केट प्लेसेस होती है, जैसे EC21. फिर आपका आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, जैसे प्राइस लाइन हो गया, इसमें आपके कंज्यूमर के फीडबैक्स लिए जाते हैं, कम्युनिटीज होती हैं और कैंपेन्स किए जाते हैं. फिर आपका आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे आपका Amazon हो गया, Amazon पे आपकी अलग अलग साइट्स होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, कोई बिजनेस स्टैब्लिश रहता है, वहां से सीधे कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो ये आपका B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर. ब्रांड बिल्डिंग होती है जैसे यूनिलीवर, मीडिया ओन रहता है जैसे न्यूज कॉर्प, और कंपैरिजन इंटरमीडिएट भी रहती है. फिर आपका आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें आपका एक प्रॉपर मीडियम स्टैब्लिश रहता है और सीधे कंज्यूमर एक दूसरे कंज्यूमर के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जैसे ईबे हो गया, ईबे में होता है पीयर टू पीयर, स्काइप होता है, स्काइप में आपका जो 2 लोग बातें कर रहे होते हैं, कोई भी बिजनेस टू बिजनेस नहीं चल रहा होता, एक कंज्यूमर होता है, दूसरा भी कंज्यूमर ही होता है जो स्काइप को यूज कर रहा होता है. तो ये आपके होते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. Number 1, business to business, B2B. Second, consumer to consumer, C2C. Third, business to consumer, B2C. Fourth, consumer to business, C2B. सबसे पहला है हमारा business to business, B2B. Business to business और B2B e-commerce refers to companies selling to other companies. Example, Covisent.com, EDIEFT. तो business to business B2B में एक कंपनी दूसरी बिजनेस को ही सेल कर रही होती है, यहाँ पर बीच में कोई कंज्यूमर नहीं होता है, दूसरा बिजनेस पार्टनर ही आपका कंज्यूमर होता है. तो बिजनेस टू बिजनेस, B2B. सेकेंड है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C. Consumer to consumer or C2C e-commerce refers to auction sites where individual consumers put up items and other individual consumers bid for it. Example sites such as eBay, Yahoo, auction etc. Consumer to consumer क्या होता है आपका? फॉर एग्जाम्पल आपका eBay हो गया, यहाँ पे कोई भी एक कस्टमर आपका अपना प्रोडक्ट डालता है, दूसरा कस्टमर आता है, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो एक कस्टमर से खरीद लेता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर आपके दोनों कस्टमर्स ही होते हैं, तो ये आपका C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म होता है. तीसरा है आपका बिजनेस टू कस्टमर, B2C. Business to consumer or B2C refers to companies that provide information about products and services on their website for the direct benefit of the actual consumers who can order any product or take any information from this site. Example, Flipkart.com, Amazon.com, etc. फिर आपका आता है बिजनेस टू कस्टमर, इसमें आपका डायरेक्टली एक एम होता है कंज्यूमर का फायदा करवाना. जैसा आपका Amazon होता है, Amazon पे जो आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं वो किसी ना किसी बिजनेस साइट के होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के होते हैं. डायरेक्टली कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है वो उसको खरीद लेता है, तो ये होता है बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, B2C. फोर्थ आपका है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B. इन दिस मॉडल individual customers offer to sell products and services to companies who are prepared to purchase them. This business model is the opposite of the traditional B2C model. Example, job portals like Naukri.com. अब आपका आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, यहाँ पर आपका जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे Naukri.com हो गया, आपके अलग अलग कंपनीज होती हैं, आप कंज्यूमर की तरह वहां पर जाते हैं साइट पे, आपको कोई वैकेंसी सही लगती है, जॉब ठीक लगती है, आप उसमें अप्लाई कर देते हैं, सीधे आप हायर हो जाते हैं. तो ये आपका होता है कंज्यूमर टू बिजनेस. ये बिल्कुल आपका ऑपोजिट है ट्रेडिशनल बिजनेस टू कंज्यूमर वाली टेक्निक से. हाउ ई कॉमर्स साइट्स वर्क. तो आपकी जो ई कॉमर्स साइट होती है वो एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है. आपका सबसे पहले कस्टमर आता है, ई कॉमर्स वेबसाइट जनरेट होती है, प्रोडक्ट्स होता है, कंट्रोल पैनल होता है, पेमेंट शिपिंग करी जाती है और आप चीजें ऑर्डर करते हैं. स्कोप इन ई बिजनेस. वी नो दैट बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज etc. is a transaction that takes place between two parties of which one is the customer and other is the seller.
The two parties may be either two firms, two individuals, or one individual and other firms, etc. The transaction is a part of e-commerce. The fields of e-commerce are taken in a very vast sense. It includes all sort of trades, professions, businesses, services, etc. E-commerce includes not only the conventional business fields but also the newer fields like medical transcription. To illustrate the vast range of services that e-commerce can offer, some examples are given below. तो further आपका आगे जाने से पहले ई-कॉमर्स का ई-बिजनेस का स्कोप क्या होता है, यहाँ पर कोई भी बिजनेस सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट को सामने पोर्ट्रे कर देता है, जिसको पसंद आता है वो लेता है, जिसको पसंद आता है वो नहीं आता है वो नहीं लेता है। जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी साइट्स होती हैं। सिंपली आपके बिजनेस टू बिजनेस जो हमने अपने 4 टाइप के पढ़े, किसी बिजनेस को अगर किसी और बिजनेस को कुछ चीज बेचनी है तो वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकती है। अब ई कॉमर्स जो होता है उसमें आपकी बहुत सारी फील्ड होती हैं, वास्ट सेंस होता है, हर टाइप का यहाँ पे ट्रेड होता है, प्रोफेशन होता है, बिजनेस होता है, सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर आपके नॉर्मल कन्वेंशनल बिजनेस फील्ड्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। ए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। बी, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑफ 2 cities और कंट्रीज। सी, ट्रांसमिशन ऑफ इंक्वायरीज, ऑर्डर इनवॉइस एंड पेमेंट्स बिटवीन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। D, sale and purchase of items between a dealer and a distributor or a manufacturing industry and an agent. E, purchasing of prospectus of a foreign university by a student. F, providing detailed information about the product. G, providing easy, efficient and quick after sale services through network. तो ई बिजनेस के क्या फायदे हैं? आपको 2 साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के बीच में जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, आप ई नेटवर्क के थ्रू, ई बिजनेस के थ्रू बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट्स जो कि 2 cities या 2 कंट्रीज के बीच में भी आपको कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वो भी आप कर सकते हैं। इंक्वायरीज, इनवॉइसेस, पेमेंट की रिसीट्स अगर आपको रिसीव करनी है वो भी आप कर सकते हैं। आपको परचेज आइटम्स जो हैं डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरिंग के बीच में आपको चीज़ें खरीदनी है वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप बैठे हैं किसी और कंट्री का, अगर आपको प्रोस्पेक्टस देखना है, यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, वो भी आप आज की डेट में ई बिजनेस के थ्रू बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कुछ फायदे हैं, स्कोप है ई बिजनेस के, जो हमारे लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। शॉपिंग ऑन द वेब. An internet-based retail business is similar to the mail order business, where you are required to select the products you are interested in buying and the quantity needed from a catalog. Difference is that instead of mailing the selected product list along with your check or credit card number, you type in your credit card number and click buy with your mouse. As an example, let us go to online bookstore on Amazon.com. If you want to buy a book online, all you have to do is, step 1, type the website name www.amazon.com in the address bar. The home page will appear. In the search section to the right on the screen, type books. Step 2, a new web page will appear with the word books already present in the search box. Step 3, you will now be taken to a page which will display all the choices available under this subcategory. Step 4, once you have found a book you would like to buy, click on the book. In the next screen that appears, simply click the Add to Cart button. Step 5, if you wish to buy more than one copy of a book you have placed in your shopping cart, change the number in the quantity box. Step 6, if you prefer to wait until another day to buy some of the items in your shopping cart, click the Save for Later button. Step 7, click the Proceed to Checkout button. Step 8, a form will appear that asks for your email address and whether you are a new customer. Click on the Register. Step now enter the name, email ID and shipping address for the order. Click on the Continue button at the bottom of the screen. Step 11, select the shipping options and click on the Continue button. Step 12, select a payment method and fill up the required information and submit. तो आपका जो शॉपिंग होता है वेब पे वो भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल जब आप घर किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आप चीज़ें पसंद करते हैं, खरीदते हैं, आप अलग अलग मेथड से पेमेंट कर पाते हैं। वही सेम तरीका आपका वेब के थ्रू भी होता है। आप कोई भी साइट ओपन करते हैं, आपकी चीज़ सर्च करते हैं, अपना कार्ड नंबर ऐड करते हैं, अगर आपको COD करना है तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस भी होते हैं, माउस पे क्लिक करते हैं, आपका आइटम प्लेस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको अमेजोन से कोई बुक ऑर्डर करनी है,
तो सबसे पहले आप वेबसाइट का नेम लिखेंगे www.amazon.com, आपके सामने एक होम पेज अपीयर हो जाएगा। आपके सर्च वाले सेक्शन में जो आपकी राइट साइड में होगा स्क्रीन के, वहां पे आपको बुक्स टाइप कर देना है। फिर आपके सामने एक वेब पेज अपीयर हो जाएगा जहां पे आपके बुक्स वाले वर्ड से जितनी भी लिस्ट है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब आपको जो भी आपका पेज है वो आपको वो सारी चॉइसेस अवेलेबल आपकी डिस्प्ले कर देगा जो आपकी सब कैटेगरी में अवेलेबल है। जैसे ही आपको बुक मिल जाएगी आप क्लिक कर देंगे उस बुक पे। नेक्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होगी, सिंपली आपको ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको सेम बुक की मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो क्वांटिटी बॉक्स में आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स आपको चाहिए। इसके बाद अगर आपको और भी कोई चीजें लेनी है या फिर आपको थोड़ा वेट करना है तो आप शॉपिंग कार्ट पे से रख सकते हैं एंड यू कैन क्लिक सेव फॉर लेटर बटन। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है चेकआउट बटन पे। चेकआउट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप नए कस्टमर हैं तो आपको वो ईमेल एड्रेस के साथ बोलेगा रजिस्टर करने के लिए। आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, शिपिंग एड्रेस डालना है जहां पे आपको ऑर्डर चाहिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है जो आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद अगर आप शॉपिंग ऑप्शंस आएंगे, अगर आपको और भी ज्यादा शॉपिंग करनी है तो आप सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको पेमेंट मेथड पे जाना है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिल इन करना है और सबमिट कर देना है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। Know it. Buying anything online is so simple that children may run up huge bills on their parents' credit. Children should seek their parents' permission first before buying anything online. तो ऑनलाइन खरीदना इतना ज़्यादा इजी होता है कि सिंपली आप भी वो कर सकते हैं और पेरेंट्स का खर्चा बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो सिंपली आपको ये सब नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो अपने मम्मी पापा की पहले परमिशन लीजिए, अलाउ करते हैं तो ऐड करिए, नहीं तो मत करिए। Some more shopping sites. https://flipkart.com, https://www.paytmmall.com, https://www.wunic.com, https://www.snapdeal.com, https://www.homeshop18.com। तो ये कुछ आपकी और साइट्स हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग टाइप की शॉपिंग कर सकते हैं। Conclusions. E-commerce is an attractive option for businesses because it can reduce their cost of transaction. On the other hand, an increasing number of consumers are drawn by the convenience of shopping at home. However, the issue of security of data and the possibility of fraud is still of major concern. Many people hesitate to send important and sensitive data such as credit card numbers over the net. They fear that the data may be interpreted by third parties who may misuse them. Companies are working hard to resolve these issues because the net does offer them a viable method of conducting business. Secondly, consumers hesitate to buy online because they are not in a position to examine the product physically. Thus, they doubt whether the product will match up their expectations. Computer engineers are trying to work around this problem by creating three-dimensional images of the products and software which will help the customer to feel and touch the product. However, this is still some way off in the future. Security, though, has improved considerably since e-commerce was thought of and as companies move towards stricter ethical standards while transacting business on the net. E-commerce will gain in popularity. E-commerce will be a reality as long as the internet exists. तो e-commerce no doubt बहुत ही अट्रैक्टिव साइट है बिजनेस वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, और कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि कंज्यूमर्स को भी घर पे बैठ के जो आप ऑर्डर कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी होता है, रादर दैन आप जाएं इतनी सारी दुकानों में घूमें देखें, तो ऑनलाइन आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बट इसके साथ थोड़े से आपके साइबर हैजर्ड्स भी हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन कुछ कंज्यूमर्स को हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है क्रेडिट कार्ड नंबर डालने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, तो लोगों को ये लगता है कि हम ये डाल देंगे तो कोई और फ्रॉडस्टर भी हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर हमारा बैंक बैलेंस खाली भी कर सकता है। दूसरा इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स जो होते हैं उनको ये भी लगता है, क्योंकि आप इसको फिजिकली नहीं देख पा रहे हैं, तो जैसा ये दिख रहा है प्रोडक्ट वैसा एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा। इसके लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अभी थ्री डायमेंशनल क्रिएट करने के लिए कि जो
ऑनलाइन ही कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट को टच भी कर पाएं और फील भी कर पाएं। लेकिन ये अभी थोड़ा दूर का ख्वाब है, पास में अभी होना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी स्टैब्लिश हो सकता है। बट अनडाउटेडली थोड़े बहुत इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हो चुका है ई कॉमर्स। आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहा है। टू रिवाइज, commerce refers to the exchange of goods and services, usually for money, and every exchange involves a producer, a buyer, and a seller. E-commerce refers to the buying and selling of products online. The sites providing e-commerce are special sites which implement some extra security features. There are 4 kinds of e-commerce. 1, business to business. 2, consumer to consumer. 3, business to consumer. 4, consumer to business. Security of data and the possibility of fraud is a major concern in कॉमर्स। तो कॉमर्स आपका सिंपली मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। ई कॉमर्स, ई ऐड हो गया इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन आप चीजों को खरीदते या बेचते हैं। तो इसमें आपका बायर आता है, सेलर आता है, प्रोड्यूसर आता है, आपकी अलग अलग साइट्स होती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सारी आपकी साइट्स हैं। बिजनेसेस करने के भी आपके ई कॉमर्स के 4 टाइप होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके अलावा ई कॉमर्स के बहुत सारे फायदे तो हमने पढ़े, थोड़े बहुत इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि बहुत सारा साइबर फ्रॉड होता है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए।